Dear students, today we are going to read the poem lesson My Mother at 66, composed by Kamala Das. The poem My Mother at 66 is one of the finest examples of the human bonding, especially that of a mother and daughter. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to harsh reality of life, which is death. My Mother of 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wished for the lost beauty and youth of her mother. About the author, the poetess Kamala Das. Kamala Das was born on March 31st, 1934 in Kerala, India. She died 31st May 2009 at Pune, Maharashtra. Growing up amidst a large family at Nalpat, punctuated by visits to Calcutta, where her father and mother lived, Kamala's world is filled with uncles and aunts and grandmothers, neighbors, and domestic help, all of whose lips closely touch hers. In this poem, Kamala's relationship with her mother is described. Kamala Das was popularly known by her one-time pen name Madhavi Kuti, noted for the poems and explicit autobiography. She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issues, child care, politics, among others. Now, we will read stanza wise. The first stanza, driving from my parents' house home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. In these lines, the poet recalls a trip back to Cochin from her holiday in her parents' house the previous week. It was a Friday, and that morning she was driving with her mother next to her on the front seat. The poet says that she was observing her mother, who had fallen asleep on the front seat with her mouth slightly open. Her mother's face was pale, and it reminded her of the nearly white faces of dead bodies. It is then that she comes to realize that her mother was not young any longer, and that her appearance had caught up with her age. This was very hard for the poet to accept, and so she was determined to focus her attention on something else. इन लाइनों में कवित्री कहती है, वो याद करती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर छुट्टियां बिताने के लिए आई हुई थी और वो कोचीन के लिए वापस जा रही है। फ्राइडे की सुबह वो ड्राइविंग करके एयरपोर्ट के लिए जा रही है। उसकी माँ कार के फ्रंट सीट पर उसके बगल में बैठी हुई। कवित्री कहती है कि वो अपनी माँ की तरफ देखती है, जो कि ऊँघ रही है, सो रही है, फ्रंट सीट पर बैठी हुई। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ है, उसका माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ, और कवित्री ये देख करके उसे अपनी माँ की एज का ख्याल आता है और वो डर जाती है कि वो जा रही है, कहीं वो अपनी माँ को खो न दे। उसे उसकी मृत्यु की याद दिलाती है। It is then that she comes to realize that her mother was not young any longer, और फिर उसे
ये एहसास होता है कि उसकी माँ अब युवा नहीं रही, एंड दैट हर अपीयरेंस हैड कॉट अप विथ हर एज, और उसकी उम्र हो गई है। दिस वॉज वेरी हार्ड फॉर द पोएट टू एक्सेप्ट, और ये स्वीकार करना कवित्री के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड सो शी वॉज डिटरमाइंड टू फोकस हर अटेंशन ऑन समथिंग एल्स, तो इस विचार को अपने मन से, अपने दिमाग से हटाने के लिए वो अपना ध्यान कहीं और लगाती है। सेकंड स्टैंजा, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away. In these lines, the poet says that she turned away from her aging mother and decided to look outside the windows of the car in which she was driving. इन लाइनों में कवित्री कहती है कि इन विचारों से अपना ध्यान हटाने के लिए, अपनी वृद्ध माँ कि एज से अपना ध्यान हटाने के लिए जो विचार उसके मन में आ रहे थे उसकी मृत्यु के, उसने कार की खिड़की से बाहर देखने का फैसला किया कि अपने दिमाग को कहीं और लगाए। आउटसाइड हर आइज फेल ऑन द ट्रीज, और बाहर उसकी आंखें वृक्षों की तरफ जाती हैं। दैट द व्हीकल वाज पासिंग बाई, कार में बैठी हुई वृक्ष उसे भागते हुए से प्रतीत होते हैं। द कार वाज मूविंग सो फास्ट दैट बाई वे ऑफ रिलेटिव मोशन, कार बहुत स्पीड से जा रही थी और उसके कारण वृक्ष भागते, विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इट सीम टू द पोएट दैट ऑल द ट्रीज शी कुड सी वेयर आल्सो रनिंग, और ऐसा प्रतीत होता है कवित्री को कि सारे वृक्ष भी बहुत तीव्र गति से भाग रहे हैं, एट फुल स्पीड पास्ट हर, विपरीत दिशा में। It seemed that those trees must have been quite youthful if they had the energy to move at such a fast pace, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये वृक्ष जो हैं बहुत युवा हैं, उनके अंदर बहुत युवा शक्ति है, उनके अंदर इतनी असीम ताकत है कि वो इतनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। द पोएट्स आइज आल्सो फील ऑन द चिल्ड्रन हु वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, कवित्री बच्चों की तरफ भी देखती है जो अपने अपने घरों से निकल करके दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। ब्रिमिंग ओवर विद द एक्साइटमेंट टू गेट आउटसाइड, बाहर निकलने की उत्सुकता उनके अंदर है। द पोएट पास्ट ऑल दीज साइट्स एंड रीच द एयरपोर्ट, और कवित्री इन सब दृश्यों को देखते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाती है। टिल देन हर माइंड वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द साइट्स, और तब तक वो इन दृश्यों को देख करके अपने मन में दूसरे ख्यालों को लाती है, वो अपनी माँ की तरफ के जो विचार उसके मन में आ रहे थे वहाँ से हटाती है। हाउएवर आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, शी वाज स्टैंडिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ से कुछ थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई है। एंड अगेन शी चांस टू नोटिस द ओल्ड वुमेन, और फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. In these lines, the poet says that just as before her mother appeared very pale and insipid, she compares her mother's face with the sight of the moon on a night towards the end of winter. इन लाइनों में कवित्री अपने माँ के चेहरे को पीला और रंगहीन, कांति विहीन दिखाई देती है, और अपनी माँ के चेहरे की तुलना शीत ऋतु में निकलते हुए चांद की तरह से उसका चेहरा दिखाई देता है। दिस मेड हर रिकॉल द थिंग्स शी हैड बीन मोस्ट अफ्रेड ऑफ ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, और इसको देख करके उसे अपने बचपन की याद आती है, जब कभी भी अपनी माँ को अपनी नज़रों के सामने नहीं देखती थी तो वो डर जाती थी। द फियर दैट हर मदर वुड डाई वन डे, और ये भय कि उसकी माँ एक दिन मृत हो जाएगी। दिस वॉज ए फियर दैट हैड प्लेग्ड हर मेनी टाइम्स बिफोर, और ये विचार उसके मन में कई बार पहले भी आए थे। एंड इट वॉज प्लेगिंग हर अगेन नाउ, और ये विचार फिर से उसके मनो मस्तिष्क में आ रहे हैं। हाउएवर शी डिड नॉट लेट दैट फियर शो इटसेल्फ ऑन हर फेस, जबकि वो अपने चेहरे पर इस भय को लाती नहीं है, व्यक्त नहीं करती है। इंस्टेड शी पुट अप ए ब्रेव फेस, बजाय कि एक सामना करने वाला
व्यक्तित्व को सामने लाती है। एंड वेव्ड गुड बाय टू हर मदर, और अपनी माँ को गुड बाय कहती है। शी अस्योर्ड हर मदर दैट दे वुड बी सीइंग ईच अदर अगेन सून, और माँ को विश्वास दिलाती है कि वो जल्द ही माँ से आके मिलेगी। एंड ऑल द वाइल इवन दो शी वॉज इन ग्रेट एगोनी द स्माइल नेवर लेफ्ट हर फेस, और इन क्षणों के दौरान ये तकलीफ उसके मन में सदैव रहा, और द स्माइल नेवर लेफ्ट हर फेस, लेकिन उसने अपने चेहरे से स्माइल को नहीं हटाया, मुस्कुराती रही माँ की तरफ देख करके। थीम ऑफ द पोएम, द पोएट इन दिस पोएम डिस्क्राइब्स हर मदर, कवित्री इस कविता में अपनी माँ का वर्णन करती है। शी सेज दैट शी इज 66 ईयर्स ओल्ड, वो कहती है कि उसकी माँ 66 ईयर्स की है, एंड लुक्स वेरी वीक एंड ओल्ड, और बहुत कमज़ोर और वृद्ध दिखाई दे रही है। शी कंपेयर्स द लाइफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस इन हर सराउंडिंग्स, वो तुलना करती है जीवन की, जीवन शक्ति की और खुशियों की अपने चारों तरफ। इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अपीयरेंस, और ठीक विपरीत अपनी माँ की जो अपीयरेंस है, जैसा कि कार में बैठी बगल में बैठी हुई जो दिख रही है, कांति विहीन चेहरा, पीला चेहरा, मेकिंग अस अंडरस्टैंड दैट एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि वृद्ध होना, उम्र का गुजरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एंड व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और हमारे वृद्ध माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इज दैट चिल्ड्रन आर परटर्ब्ड बाय द कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड वांट टू बी विद देम, और जीवन की ये बाध्यताएं हैं कि बच्चे जो उनके माता पिता की जो परिस्थिति है वो उनके साथ होना चाहते हैं, लेकिन अपने काम के कारण उन्हें दूर जाना पड़ता है। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लुकिंग आफ्टर द एजिंग पेरेंट्स एंड अटेंडिंग टू आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे ये प्रश्न उभर करके आता है कि कैसे हमें अपने काम और अपनी ड्यूटी, जो कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, हम अपना काम और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस दायित्व की भी पूर्ति कर सकें। यही इस कविता की विषय वस्तु है। Poetic devices, rhyme scheme. The poet does not use any identifiable rhyming scheme in this poem. It is a blank verse. This poem is written in blank verse, having no rhyme scheme. Simile. The rhetorical device is used when an overt comparison is made between two different things. In this poem, the poet uses the device of simile on two instances. When she compares her mother's face with that of a corpse, dead body से जब compare करती है अपने mother के चेहरे को, and also uses the word like while making that comparison, like का use करती है. She again compares her mother with the moon in winter time, and also uses the word as while making this comparison. So simile is used here. Her face ashen like that of a corpse, as a late winter's moon. Personification. This rhetorical device is used to give human qualities to something that is not human. In this poem, the poet uses the device of personification with respect to trees. She imagines the trees to be figures that are running alongside her car. Trees sprinting. Personification. Apostrophe. This rhetorical device is used when a poet addresses his or her poem to an absent audience. In this poem, the poet uses the device of apostrophe when she speaks directly to her mother, addressing her as Amma, even though we never see the mother replying to the poet. Metaphor. This rhetorical device is used when a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. In this poem, the poet uses the device of metaphor in line when she speaks, trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, to show the contrary image of her mother's age and approaching end. Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Repetition. This rhetorical device is used when a word or phrase is repeated. In this poem,
The poet uses the device of repetition in last line. All I did was smile and smile and smile. When she had to subdue her feelings and tried not to show her emotion to her mother. She says she believes that she will meet her mother again. Repetition. All I did was smile and smile and smile. Alliteration. It is a repetition of the consonant sounds in a line of a poem. My mother, that thought, I said was, see you soon. Thank you for watching the video.